students, welcome to Abhilaw, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigire and retired additional commissioner as well as director of Ignal School of Law. We are in the series of Code of Civil Procedure 1908. We have already studied from section 1 to 3. Now, this is the lecture 2 as far as CPC sections are concerned. Before that, I have given some introductory lectures. Please go through it such that you can understand certain terminologies and the background of CPC. Let's start with section 4 now. Section 4 is the saving clause, saving section, and we should know as far as section 5 of CRPC is concerned, it is also having a saving clause. Now, what does the saving clause mean? In the absence of any specific provision to the contrary, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any special or local law in force or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by or under any other law for the time being in force. Means what? In a particular jurisdiction or in a territorial area, if any other law is existing which have a contradiction with the code of civil procedure, then the local law and the special law is going to prevail. That is what the saving clause section 4 is talking about. And subsection 2 says, in particular and without prejudice to the generality of the proposition contained in subsection 1, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any remedy which a landlord may have under any other law for time being in force for the recovery of rent of agricultural land from the produce of such land. Same thing what we discussed. So I hope so everybody understand why saving clauses are used. Let's go to section number 5. Application of the code to revenue courts. Now we should understand revenue courts are not the courts which are formed under the Code of Civil Procedure. Under section 3 Code of Civil Procedure, we have already discussed the courts which are formed under the CPC 1908. So revenue courts are the courts which are formed under the Revenue Act. So let's understand section 5, where any revenue court are governed by the provisions of this code in those matter of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent. The state government may by notification in the official gazette declare that any portion of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those courts or shall only apply to them with such modification as the state government may prescribe. What is section 5 saying? रेवेन्यू कोर्ट का एक खुद का रेवेन्यू कोर्ट का प्रोसीजर होता है. अगर कोई भी मैटर में रेवेन्यू कोर्ट के प्रोसीजर में अगर प्रोसीजर नहीं रहेगा और वो प्रोसीजर अगर सिविल कोड में रहेगा तो वो प्रोसीजर जो सीपीसी का प्रोसीजर है उसको रेवेन्यू कोर्ट अडॉप्ट कर सकती है. वो डायरेक्ट अडॉप्ट कर सकती है या मॉडिफिकेशन के साथ अडॉप्ट कर सकती है. दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट हाउ इट हैज प्रिस्क्राइब्ड दैट. आइए हम सबसेक्शन 2 को देखते हैं. रेवेन्यू कोर्ट इन सबसेक्शन 1 मींस कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन अंडर एनी लोकल लॉ to entertain suit or other proceeding relating to the rent, revenue or profit of land used for agriculture purposes, but does not include civil court having jurisdiction under this court to try such suit or proceeding as being suit or proceeding of a civil nature. मतलब रेवेन्यू कोर्ट के पास जो अधिकार है, जो जुरिडिक्शन है, वो अधिकार लोकल लॉ ने दिया है और वो सर्टेन सूट्स यूज कर सकते हैं. जैसा रेंट लेना है, लैंड का रेवेन्यू जमा करना, लैंड के प्रॉफिट को देखना, ये सारे जो मैटर जो रेवेन्यू कोर्ट हैंडल कर सकती है, जो रेवेन्यू एक्ट के अंडर आते हैं. लेकिन सिविल कोर्ट के पास जो जुरिडिक्शन है वो मैटर रेवेन्यू कोर्ट हैंडल नहीं कर सकती. अब हम ब्रेकडाउन देखते हैं सेक्शन 5 का. सेक्शन 5 इसका पर्पस क्या है? Section 5 extend the applicability of CPC to revenue courts in situation where their governing statutes, special enactments do not provide specific procedural guidance.
देखिए इसका पर्पस क्या है सेक्शन 5 का। जहां पर रेवेन्यू कोर्ट में ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर जहां पर रेवेन्यू कोड के हिसाब से कोर्ट नहीं चल सकता, तो सीपीसी का एप्लीकेबिलिटी रेवेन्यू कोड पे लगेगी वो प्रोसीजर के लिए। इसके लिए सेक्शन 5 लगाया गया है। और स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी जारी होना चाहिए इसके लिए, ताकि रेवेन्यू कोर्ट में जो लैंड के जो रेवेन्यू के मैटर है, टेनेंसी के जो मैटर है, उसमें भी प्रोसीजरल फ्रेमवर्क वो सीपीसी के अडॉप्ट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं रेवेन्यू कोर्ट क्या है। ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स है अंडर स्टेट रेवेन्यू लॉज टू हैंडल डिस्प्यूट related to land revenue, tenancy right, partition of agriculture land and other revenue related matter। गैप फिलिंग रोल क्या है? ये सेक्शन 5 का पर्पस गैप फिलिंग रोल है। जहां पर रेवेन्यू कोर्ट के पास मैकेनिज्म नहीं है, वो सीपीसी का प्रोसीजर यूज करके मैकेनिज्म पूरा कर सकती है। की फीचर्स ऑफ सेक्शन 5, कंडीशनल एप्लीकेशन। सीपीसी पूरा ऑटोमेटिकली रेवेन्यू कोड पर अप्लाई नहीं हो सकता जब तक स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से लेके गैजेट में उसको पब्लिश नहीं करती। डिस्क्रिशनरी पावर है स्टेट गवर्नमेंट का, कौन कौन से प्रोविजन सीपीसी के वो रेवेन्यू कोड को लागू कर सकती है, वो डिस्क्रिशनरी पावर है स्टेट गवर्नमेंट का। डीम सिविल कोड, व्हेन सीपीसी प्रोविजन आर मेड एप्लीकेबल, रेवेन्यू कोड आर ट्रीटेड एज सिविल कोड्स फॉर दो स्पेसिफिक प्रोसीजर, enabling them to exercise powers and follow process outlined in the CPC। मतलब जहां सीपीसी के प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए रेवेन्यू कोड पर, तो रेवेन्यू कोड को सिविल कोड का दर्जा दिया जा सकता है सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक प्रोसीजर के लिए। तो उसके बाद हम रेवेन्यू कोड्स का कवरेज देखते हैं। स्कोप क्या है? एप्लीकेशन का स्कोप अंडर सेक्शन 5 रेवेन्यू कोड कवर्ड कौन कौन से स्टेट स्पेसिफिक लॉज, कौन कौन से कोर्ट है? तहसीलदार कोर्ट, नायब तहसीलदार कोर्ट, डिविजनल ऑफिसर का रेवेन्यू कोर्ट, ये सारे कोर्ट है जो महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 के अंडर है एस्टैब्लिश्ड। टेनेंसी ट्रिब्यूनल अंडर टेनेंसी लॉ, बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 1948। मैटर्स ऑफ प्रोसीजर, सेक्शन 5 क्या बोलता है? applies to only procedural matters, filing of suits, service of summons, examination of witness, execution of orders, and not to substantive rights or jurisdiction which remain governed by the special enactment। मतलब सीपीसी के जो प्रोसीजरल मैटर्स है वही लागू हो सकते हैं रेवेन्यू कोर्ट पे, जैसा समन को इश्यू करना, विटनेस को एग्जामिन करना, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना। बाकी चीज के सीपीसी के पावर सेक्शंस लागू नहीं होंगे रेवेन्यू कोड पर। साइलेंस इन स्पेशल एनैक्टमेंट, जहां पर स्पेशल एनैक्टमेंट कोई भी चीज पे साइलेंट है वहां पर सीपीसी का स्कोप लग सकता है। एग्जामिनेशन, एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन, हम 3 सिनेरियो दिए एप्लीकेशन के एग्जांपल के लिए। सिनेरियो नंबर 1, सपोज अ रेवेन्यू कोड अंडर उत्तर प्रदेश कोड is adjudicating a dispute over partition of agriculture land. The court is silent how to serve the summons to the party. The state government may notify that section 27 of CPC will apply। ये सिनेरियो 1 हो गया। सिनेरियो 2, सिनेरियो 1 में क्या हो गया? समन्स कैसे इशू करना, उसकी प्रोसीजर, ये रेवेन्यू कोड में नहीं है, इसलिए सेक्शन 27 नोटिफाई हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि सीपीसी का सेक्शन 27 रेवेन्यू कोड पे इंप्लाई हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। सिनेरियो 2 देखते हैं, जहां पे टेनेंसी का डिस्प्यूट है रेवेन्यू कोर्ट में और एविडेंस को रिकॉर्ड करना है, और टेनेंसी की जो प्रोविजन है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस वो रेवेन्यू कोड में नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर 18 को सीपीसी का अप्लाई कर सकती है रेवेन्यू कोड पर। ये सिनेरियो 2 हो गया। सिनेरियो 3, इफ अ रेवेन्यू कोर्ट नीड्स टू ग्रांट इंटरिम इंजंक्शन
टू डिस्प्यूटेड लैंड, तो स्पेशल एनेक्टमेंट इंटरिम इंजंक्शन पर साइलेंट है, तो ऑर्डर नंबर 39 सीपीसी का जो टेम्पररी इंजंक्शन का है उसको स्टेट गवर्नमेंट लागू कर सकती है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं। लिमिटेड एप्लीकेशन, कोर्ट हैव क्लैरिफाइड दैट सेक्शन 5 डज नॉट कन्फर जनरल सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन। ये श्रीराम वर्सेस फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि रेवेन्यू कोर्ट अलग है सिविल कोर्ट से। फिर स्टेट गवर्नमेंट का रोल, the application of CPC provision is not automatic. State government has to notify. ये स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सरवंत सिंह 1987 में जजमेंट में दिया गया है। उसके बाद कंसिस्टेंसी विद स्पेशल एनेक्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिजराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2001 में ये बताया है कि सीपीसी के जो प्रोविजन है जो अप्लाई होती है वो स्पेशल एनेक्टमेंट को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हो रही है तो स्पेशल एनेक्टमेंट विल प्रिवेल ओवर सीपीसी। आइए हम सेक्शन 5 का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखते हैं। वो प्रोसीजरल यूनिफॉर्मिटी के लिए सेक्शन 5 दिया गया है ताकि जो प्रोसीजर रेवेन्यू कोड में नहीं है वो प्रोसीजर अडॉप्ट की जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं लिमिटेशन और चैलेंज। सेक्शन 5 के लिमिटेशन क्या है? सेक्शन 5 नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है स्टेट गवर्नमेंट के। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है स्पेशल एनेक्टमेंट में तो स्पेशल एनेक्टमेंट प्रिवेल करती है। स्कोप लिमिटेड है, जितने सब्सटेंटिव मैटर है उसके ऊपर वो लागू नहीं होते, विच इज गवर्न बाय स्पेशल एनेक्टमेंट। इसलिए लिमिटेड स्कोप है सीपीसी का रेवेन्यू कोड पर। अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, रेवेन्यू कोड ऑफिशियल में लैक अवेयरनेस ऑफ एप्लीकेबल ऑफ सीपीसी प्रोविजन लीडिंग टू प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज। अभी इंटरैक्शन विद अदर सीपीसी प्रोविजन, सेक्शन 5 कौन कौन से प्रोविजन से रिलेट करता है अपने सीपीसी के बुक पर लिख दो। एक है सेक्शन 3, क्योंकि सेक्शन 3 कोर्ट के बारे में कहता है जो कोर्ट सीपीसी के द्वारा फॉर्म होते हैं। सेक्शन 9 उन सिविल कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन। सेक्शन 15 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ये तीनों सेक्शन के साथ सेक्शन 5 इंटरैक्ट करता है। रेलेवेंट केस लॉज, जो 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज है मैं आपको बता देता हूं। हरिशंकर वर्सेस राव गिरधारी लाल 1962, Supreme Court held that the revenue court are distinct from civil court. State of Tamil Nadu versus Guruswamy 1997, the court ruled that CPC provision applied under Section 5 must align with the objective of special enactment governing the revenue court. Rajaram versus State of Madhya Pradesh, यहाँ पर the court clarified that the state government notification under Section 5 must be specific and cannot apply the entire CPC to the revenue courts. Conclusion देखते हैं। Section 5 का conclusion, Section 5 CPC is a procedural bridge between revenue court or civil court. It ensures flexibility and fairness for the functioning of revenue court. Application of Section 5 depend on the state government notification. Understanding Section 5 is a crucial for practitioners who are practicing or the litigants who are dealing with revenue disputes. आइए हम सेक्शन 6 को देखते हैं। सेक्शन 6 पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन। पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी जो हमारे पहले के जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, उसमें बताया गया है। जो हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बात की उसमें saving so far as is otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction overshoots the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits of its original jurisdiction. इसका मतलब क्या है? जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का
उसकी वैल्यू कितनी है। अगर उसकी जो वैल्यू है वो जो सिविल कोर्ट को जो पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन दिया गया है उसके अंडर बैठना बहुत जरूरी है। अगर वो सिविल कोर्ट की पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन से ऊपर अगर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है तो वो उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं बैठेगा और वो सूट ही एट फर्स्ट इंस्टेंट डिसमिस हो जाएगा। तो आइए इसके ब्रेकडाउन को देखते हैं। सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 का पर्पस क्या है, क्यों लाया सेक्शन 6 सीपीसी में। मैं हर सेक्शन का पर्पस आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। सेक्शन 6 ensures that civil courts adjudicate only those suits where the monetary value of the dispute, that is the subject matter, falls within pecuniary limits। अब ये pecuniary limit क्या है हम आगे चलकर देखते हैं। कौन से कोर्ट को कितना मॉनिटरी jurisdiction दिया गया है। This provision maintains an organized judicial hierarchy based on financial stakes of the case, prevent lower courts from handling cases beyond their financial capacity, ensuring efficiency and competence। इसका मतलब क्या है कि हर कोर्ट को, प्रत्येक कोर्टाला एक फायनान्शियल लिमिट दिली गेलेली आहे ज्याच्यावर तो डिसिजन देऊ शकतो। सो यू शुड रिमेंबर, अगर उसके पास वो फाइनेंशियल ज्यूरिडिक्शन नहीं है और सब्जेक्ट मैटर की फाइनेंशियल वैल्यू उससे ज्यादा है तो वो कोर्ट उसको हैंडल नहीं कर सकता। पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन डिफाइंड, की फीचर्स ऑफ सेक्शन 6। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल जज, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन is assigned specific pecuniary limits by the state, specific law और हाई कोर्ट रूल्स। तो हाई कोर्ट ने रूल बनाए, स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाए सीनियर डिवीजन को कितने सब्जेक्ट मैटर के वैल्यू का, मॉनिटरी वैल्यू का मैटर हैंडल कर सकता है, जूनियर डिवीजन कितने मॉनिटरी वैल्यू का मैटर हैंडल कर सकता है, वो है। अभी सब्जेक्ट मैटर वैल्यू हम इसको देखते हैं। पिक्यूनियरी वैल्यू जब निकाली जाती है तो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू निकाली जाती है, न बल्कि रेंट की। अगर कोई रेंट का मैटर है तो स्मॉल कॉजेज कोर्ट में जाएगा, लेकिन रेंट के साथ अगर मैटर डिस्प्यूट में है प्रॉपर्टी के ओनरशिप का तो स्मॉल कॉजेज कोर्ट में नहीं जाएगा क्योंकि उनकी पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन कम है। सब्जेक्ट मैटर वैल्यू, the jurisdiction is determined by the amount or value of the subject matter of suit as stated in the plaint by the plaintiff। मतलब जो प्लेंट में प्लेंटिफ ने जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू लिखी गई है उसके अमाउंट पर ज्यूरिडिक्शन डिपेंड होता है। दिस इंक्लूड्स मॉनिटरी क्लेम इन द मनी सूट्स, दैट इज रिकवरी ऑफ डेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन सूट इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, पार्टीशन है, टाइटल डिस्प्यूट है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रिलीफ सॉट्स इन सूट्स फॉर इंजंक्शन और डिक्लेरेटिव रिलीफ। अभी स्कोप देखते हैं पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन का। हमने तो हायरार्की पहले से बताई। ओके, हाई कोर्ट सबसे ऊंचा है, उसके बाद सिविल जज है, जूनियर डिवीजन, उसको 1 लाख से 5 लाख तक पावर दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। मॉनिटरी वैल्यू बता रहा हूं सब्जेक्ट मैटर का। सिविल जज सीनियर डिवीजन 20 लाख से 50 लाख दे सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाता है। हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो सकता है अंडर कंपनी लॉ विथ नो पिक्यूनियरी लिमिट। वैल्यू को डिटरमाइन कैसे करते हैं, सब्जेक्ट मैटर के वैल्यू को, अब हम उसको देखते हैं। वैल्यू ऑफ द सूट इज जनरली डिटरमाइंड बाय अमाउंट क्लेम्ड इन द प्लेंट फॉर मनी सूट। जब प्रॉपर्टी का रहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी रेटेबल वैल्यू, और नोशनल और फिक्स्ड वैल्यू फॉर सूट सीकिंग नॉन मॉनेटरी रिलीफ एज प्रिस्क्राइब बाय कोर्ट फी लॉज और कोर्ट फीस एक्ट 1870।
जहां पर मॉनिटरी वैल्यू नहीं है वहां पर कोर्ट फी एक्ट के हिसाब से 1870 से वैल्यू डिसाइड की जाती है। स्टेट स्पेसिफिक वेरिएशन, ईच स्टेट में वेरी, प्रिस्क्राइब डिफरेंट पिक्यूनरी वैल्यूज, लिमिट्स फॉर देयर कोर्ट्स, practical implication, filing of suit. Plaintiff must file a suit in the court with appropriate pecuniary jurisdiction based on the value of the claim. Filing in the court lacking pecuniary jurisdiction may lead to the plaint being returned under Order 7, Rule 10 of CPC. अगर pecuniary value जो प्लेंट की है वो कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं बैठती तो अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 वो प्लेंट रिटर्न किया जाएगा। जहां पर वैल्यूएशन का डिस्प्यूट होता है तो वैल्यूएशन के डिस्प्यूट पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कोर्ट करेगी और उस सूट का एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू डिसाइड करेगी, उसके ऊपर जुरिडिक्शन बेस्ड होगा और उस वो ऑर्डर 7 रूल 11 में मेंशन्ड है। ट्रांसफर ऑफ केसेस, इफ अ सूट इज फाइल्ड इन अ कोर्ट lacking pecuniary jurisdiction, the district court or high court may transfer it to the competent court under section 24 of CPC. Appeal, pecuniary jurisdiction also affect the appellate structure. इस बात को हमको याद रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। सिनेरियो 1, a plaintiff files a suit for recovery of 3 lakhs in a civil judge junior division court with a pecuniary limit of 5 lakhs. The court has jurisdiction under section 6. Scenario 2, a suit for partition of property valued at 1 crore is filed in a civil judge junior division. Pecuniary limit 10 lakh hai. Then the court lacks jurisdiction under section 6. So the suit must be filed to district court. Scenario number 3, a suit for injunction without specific monetary claim is valued notionally of rupees 10,000 under Court Fees Act. If it falls with pecuniary limit of civil judge junior division, that court can hear the case. हमने 3 सिनेरियो दिए, 3 एग्जाम्पल दिए ताकि आपको सेक्शन 6 का पिक्यूनरी जुरिडिक्शन अच्छे तरह से समझ में आए। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, वैल्यूएशन ऑफ प्लांटिफ in commercial aviation and travel company versus Vimla Panalal, Supreme Court held that the plaintiff valuation of the suit in the plant is prima facie accepted for determining pecuniary jurisdiction unless it is shown to be arbitrary or malified. Preliminary inquiry करने का डिसीजन इन तारा देवी वर्सेस ठाकुर राधाकृष्णन महाराज 1987 सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कोर्ट कर सकता है मॉनेटरी वैल्यू का। नो जुरिडिक्शन बियॉन्ड लिमिट इन करण सिंह वर्सेस चमन पासवान 1954 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ डिक्री पास बाय द कोर्ट लैकिंग पिक्यूनरी जुरिडिक्शन is a nullity if the lack of jurisdiction is apparent and prejudicial to the parties. Exception to the pecuniary jurisdiction. लिमिटेशन और चैलेंजेस को देखते हैं। इनकरेक्ट वैल्यूएशन अगर हुआ तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, जुरिडिक्शन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा। स्टेट वेरिएशन, हर स्टेट में अलग अलग पिक्यूनरी जुरिडिक्शन दिया है कोर्ट का, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा जिस स्टेट में आप प्रैक्टिस करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सूट, इन सूट इन्वॉल्विंग मल्टीपल रिलीफ, जहां पर करेक्ट वैल्यूएशन फॉर पिक्यूनरी जुरिडिक्शन चाहिए। मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी क्लेम्स दोनों को चेक करना पड़ेगा। इंपैक्ट ऑन अपील्स, incorrect determination of pecuniary jurisdiction at the trial stage can affect the appellate process.
इंटरैक्शन विद अदर सीपीसी प्रोविजन। अब सेक्शन 6 कौन कौन से प्रोविजन के साथ इंटरैक्ट करता है, सेक्शन 6 के बाजू में लिख दो। सेक्शन 15, सेक्शन 16 से 20, ऑर्डर 7, रूल 10, ऑर्डर 7, रूल 11, ये सारे इंटरैक्शंस है सेक्शन 6 के सीपीसी के प्रोविजंस के साथ। इंपॉर्टेंट केस लॉस, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सत्तप्पा चेटियार वर्सेस रामनाथन चेटियार। सुप्रीम कोर्ट clarified that the valuation of pecuniary jurisdiction is based on subject matter as stated in the plaint, subject to verification. फिर राजा सोप फैक्ट्री वर्सेस एसपी संतराज, the court held that pecuniary jurisdiction must be determined at the time of filing of the suit. Subsequent changes in the value does not affect jurisdiction. Conclusion देखते हैं सेक्शन 6 का। Section 6 of CPC is a critical provision as far as pecuniary limits are concerned. So, plaintiff valuation plays a very, very key important role under Section 6. So, we need to understand under which court we need to file the suit. With this, we conclude today's lecture. We have explained Section 4 to Section 6. I hope so. Everybody has understood this section. If you have understood, like तो बनता है. Please share with your friends such that they will be able to understand CPC. Thank you so much. Wait for the next lecture. Thank you.